دوستو خدا ان کی تعظیم اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پرفضل موقع کے لیے اور اس اچھی صبح کے لیے. اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں شاد ہیں، اپنی زندگیوں میں آباد ہیں. خداوند آپ سب لوگوں کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے. خداوند میں سلامت رہیے. اور میں خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو نان بقا اس مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ سب لوگوں کی زندگیوں کے لیے انتہائی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو فضل دیا کہ آپ علل صبح منہ دھیرے خداوند کے جلال کے لیے میرے ساتھ اس مارننگ ڈیووشن کا حصہ بنتے ہیں. خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے. اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. آسمان و زمین کے خالق پروردگار مہربان جلیل خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو زندہ اور قدوس ہے. خداوند التجا ہے کہ جب ہم آج کی صبح کے آغاز ہی میں تیرے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ تجھے عزت و جلال دیں اور تیری تعریف کریں، تو خداوند تیرا رحم ہماری زندگیوں پر قائم رہے. یسوع کے نام میں آمین آمین. خدا ان کی پرستش ہو دوستو. اور آج کے اس خوبصورت موقع کے مناسبت سے آئیے ہم مل کر خدا ان کی تعریف کریں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں. اور بڑا ہی خوبصورت گیت ہے جو ہم کوائر کے ساتھ مل کر گانے کو ہیں، دل دا میں کمزور تھے یسوع مینوں سانبھ کے رکھیں. اور بڑا ہی جاندار گیت ہے اور بڑا ہی میننگ فل گیت. اور آئیے خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں. دل دا میں کمزور تھے یسوع مینوں سانبھ کے رکھیں. پریز دا لارڈ. بھلا ہے خدا ان کی مدد سرائی کرنا. اور خدا ان کی مدد سرائی اور اس کی ستائش میں ہم نے ایک بڑا ہی خوبصورت گیت گایا. اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ خدا ان کا فضل ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے اس صبح میں استعمال کر رہا ہے. اور ہر صبح وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ کر اسے عزت و جلال دیں. اور دوستو یہ وقت ہے کہ ہم خدا ان کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کامران حیدر موجود ہیں اور ہم اپنے بھائی کامران کے وسیلے سے آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں. تھینک یو بھائی صاحب. اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 36ویں آیت. اور یافا میں ایک شاگرد تھی تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے. وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. آمین. پریز دی لارڈ. خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش ہو. اور دوستو خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب رہے. اور آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا ان بزرگ قادر مطلق آسمانی رب، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہوئے خدا ان جب ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں تاکہ تجھے عزت و جلال دے سکیں، تو خدا عظیم تو اپنی رحمت اور کثرت کی نگاہ ہم لوگوں پر کر. اور خدا بخش دے کہ تیرے کلام اقدس پر غور کرتے ہوئے خدا ان تیرے کلام کو اپنی زندگی میں وہ مقام دیں کہ جس کے سبب
तेरी निगाह में मकबूल हों। खुदावन तो अपने बच्चों पर अपनी खास कसरत, फजल और रहम की निगाह, अपनी हिकमत और दानाई को अता कर देना, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। दोस्तों, अभी हमने जो आयत मुबारका को सुना है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास बाइबल मुकद्दस भी मौजूद होगी, और ज़रूर आपने इस वर्स को खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से देखा भी होगा। और अहम बात क्या है कि ज़िंदगी के चलन को अगर हम देखें तो ज़िंदगी का चलन जो है वो दो ही तरह की कुव्वतों पर मबनी है, अच्छाई और बुराई। पूरे कायनात की तख्लीक को देखें, पूरी दुनिया की तख्लीक को देखें, बनीनो इंसान के खल्क होने को देखें, तो ये सब कुछ और तमाम तर चीज़ें जो हैं ये दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। और जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि अच्छाई या नेकी का फल जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के अजीब फजल के वसीले से इंसान को हासिल होता है। और इस फल की वसातत से जब ये फल हमारे अंदर पैदा होना शुरू होता है और पकना शुरू होता है, तो इस फल के वसीले से क्या है कि हम दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद करने का जज्बा अपने अंदर पैदा होते हुए देखते हैं। और आज जिस वक्त हमने खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखा और इस पर गौर कर रहे हैं, तो इस फल की बदौलत हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करने को तरजीह देते हैं। और जब हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने और एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं, तो दोस्तों यकीनन हमारी जिंदगियों में खुदावंद अपनी शुक्रगुजारी के अंसर को भी भरता चला जाता है। और आज जो आयत मुबारका आपने सुनी, इस आयत मुबारका में हमने क्या देखा कि एक ऐसी खातून का जिक्र किया गया कि जो शागिर्दा थी उस वक्त के मुताबिक, और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उस शागिर्द का नाम क्या है? तबीता, जिसका मतलब है हरनी। और जिस वक्त खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो तबीता की एक बड़ी अहम क्वालिटी और उसकी खासियत जो है वो हमें बयान की गई बाइबल मुकद्दस में। और उसकी खासियत क्या है कि वो खैरात का काम और हर अच्छा और नेक काम जो है वो कसरत के साथ किया करती थी। और याद रखें कि एक वो वक्त आया कि जब तबीता अचानक बीमार पड़ गई और फिर क्या होता है कि उसकी मौत वाक़ई होती है और वो खुदावन में सो जाती है। लेकिन पौलुस रसूल जो हैं वो इस बहन के लिए, इस हमारी आबाई कलीसिया से ताल्लुक रखने वाली हमारी इस बुजुर्गा के लिए दुआ फरमाते हैं। और दुआ क्या है कि वो खुदावंद से ये इल्तिजा करते हैं कि ऐ खुदावंद तू इसको जिंदगी अता कर। और खुदावंद जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल की इस पुकार को, उनकी इस दुआ को सुनते हैं और तबीता को क्या है कि जिला अता कर देते हैं। और तबीता जी उठी, और जी उठने के बाद भी तबीता के ये नेक कामों का सिलसिला और कलीसिया की तरक्की और सरफराजी के लिए अपने मुखय्यर होने का हाथ जो है वो तबीता ने बढ़ाए रखा। और तबीता बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रही, और जिसके वसातत से बहुत बड़ी तादाद जो है उन लोगों ने वो मसीहत को कबूल किया और खुदावन के भेड़ खाने में शामिल हुए। और इसी तरह अगर हम अमाल की किताब के 11वें बाब को देखें तो वहां पर हमें बरनबास का भी जिक्र दिखाई देता है। और बरनबास के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि बरनबास भी उसी खासियत का मालिक, कि वो भी इब्तदाई कलीसिया को परवान चढ़ाने में अपना बड़ा किरदार अदा करता है और लोगों की हाजतों को पूरा करता है, उनकी मदद करता है। और इसी तरह मुकद्दस बरनबास के हवाले से कहा गया कि वो खुदा के रूह और ईमान से सरशार और भरपूर था। और मेरे दोस्तों, फिर एक और मिसाल हमें खुदा उनके बुजुर्ग कलाम ही में दिखाई देती है कि जो अमाल की किताब उसके 10वें बाब में, और जहां पर हम करनीलियस नामी एक शख्स को देखते हैं। और करनीलियस जो है वो भी हकीकत में उसकी भी जिंदगी का यही खासा है कि वो खुदावंद के नाम में और उसकी राह में उसके लोगों के लिए अपने
दिल को खोले हुए है, अपनी जेबों को खोले हुए है, अपने हाथों को बढ़ाए हुए है, ताकि खुदावन के लोग उसके मालो दौलत के वसीले से बरकत पाएं और तमाम कलीसिया जो है वो यीशु के पुरफजल नाम के वसीले से बढ़ती और तरक्की करती चली जाए। और इसी तरह से मेरे दोस्तों, अगर आपने इन तीनों कैरेक्टर्स को बगौर सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो यकीनन आपने एक बात नोट की होगी कि इन तीनों की जिंदगी में एक बात कॉमन है, एक बात मुश्तरक है। और वो कॉमन चीज क्या है कि ये तीनों लोग जो हैं, बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि ये तीनों लोग असल में रूह कुद्स की कुदरत से भरे हुए लोग थे। और जब ये रूह कुद्स की कुदरत से भरे हुए थे, रूह कुद्स की मामूरी और उसके मसा से सरशार थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी जिंदगियों में रूह कुद्स का फल पैदा ना हो। और जहां रूह कुद्स के फलों का जिक्र हम देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो खुदावंद का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि उन्हीं में से एक फल जो है वो नेकी करने का फल भी है। और ये तीनों जब रूह कुद्स से मामूर जिंदगी बसर कर रहे थे, रूह कुद्स से भरे हुए थे, तो उनके अंदर नेकी का फल जो है वो भी उत्तम दर्जे पर मौजूद था। और जिनके इनकी इस खासियत के वसीले से इब्तदाई कलीसिया में बहुत ढेरों तरक्की हुई और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आए और खुदावंद के नाम के वसीले से बचाए गए। लेकिन आज बहैसियत कलीसिया और बहैसियत शुरकाए कलीसिया, आज हम थोड़ी देर के लिए इस दिन के आगाज में अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आज मेरी जिंदगी हकीकत में क्या है। क्या मैं हकीकत में तबीता की तरह हाजतमंदों की हाजतों को रफा करता हूं? क्या हकीकत में मैं बरनबास की तरह ईमान और रूह कुद्स की कुदरत से भरा हुआ हूं? और इसके साथ साथ क्या मैं करनीलियस की तरह अपने मालो असबाब के वसीले से अपनी कलीसिया, अपने चर्च के लिए अपना किरदार अदा करता हूं या नहीं? मेरे दोस्तों, आज ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है। आज ये हमारे लिए एक समझने वाली बात है कि जब हम खुदावंद के हजूर में अपने हाथों को खोलते हैं, अपनी जेबों को खोलते हैं, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, तो खुदावंद का जलाल उसी कसरत के साथ हम लोगों की जिंदगियों पर जाहिर होता। जो लोग खुदावंद की राह में देना सीख जाते हैं, जो लोग खुदावंद की राह में खर्च करना सीख जाते हैं, जो मुखय्यर होते हैं खुदावंद की जमायत के लिए, खुदावंद कभी भी उनकी जिंदगियों में कमी वाक़ई नहीं होने देता। और आज मेरे दोस्तों, हमें इस दिन के आगाज में अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए हमें खुदावंद से ये मदद और फजल मांगना है कि खुदावंद तुम मुझे भी तबीता और बरनबास और करनीलियस जैसा किरदार अता कर, ताकि हम बढ़ चढ़कर तेरे घर के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, गरीबों और नादारों के लिए, कमजोरों और बेसहारों के लिए मदद कर सकें और उनके लिए सहारा बन सके। और मेरे दोस्तों, जो जान खुदावन के सिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ती है, जो जान खुदावन के उस मखलूक की मदद करती है कि जो बेसहारा और नादार और गरीब हैं, खुदावन के फजल और उसकी रहमत और उसकी बरकत और उसके करम की निगाह उस शख्स से कभी नहीं हटती। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए आज खुदावंद से वादा करें कि आए खुदावंद, मैं भी किसी ना किसी कलीसिया का मेंबर जरूर हूं। आए खुदावंद, मेरा ताल्लुक भी किसी ना किसी कलीसिया से जरूर है। इसलिए आज ही से, अभी से मैं अपनी कलीसिया, अपने चर्च के लिए काम करना चाहता हूं। मैं अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए ऐसा बहुत सारा काम करना चाहता हूं। मैं अपनी जेब को खोलना चाहता हूं। मैं अपने किरदार के वसीले से अपनी कलीसिया और अपने बहन भाइयों को हेल्प आउट करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपने मालो दौलत के सबब से अपनी कलीसिया, अपने चर्च और अपने ऐसे बहन भाइयों को अपलिफ्ट करना चाहता हूं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और दोस्तों, जब हम इस तरह की इंटेंशन रखेंगे अपनी जिंदगी में, तो याद रखिए कि खुदावन का रूह कसरत के साथ जुम्बिश करेगा। खुदावन हमारे लिए इंतजामात भी करेगा, खुदावन हमारे लिए राहों को भी खोलेगा। तो आइए आज ही से हम खुदावन अपने खुदा के हजूर झुकें और उससे मिन्नत करें कि खुदावन तुम मुझे
ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ ہاتھ بڑھانے والا بنا، تاکہ میرے وسیلے سے اور میرے اس جسچر کے وسیلے سے بہت سارے لوگ تیرے نام کے وسیلے سے برکت پائیں، کیونکہ میں کون ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکوں، بلکہ یہ تیرا فضل ہے کہ تیرے کلام کے وسیلے سے، تیرے آسمان کے وسیلے سے جو کچھ مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے، اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم اور برحق ہے، جلال کے بادشاہ، اپنا رحم اور اپنی بزرگی فرما، اور خداوند التجا ہے کہ تو ہماری تمام دیکھی اندیکھی کی گئی تقصیروں، گناہوں، خطاؤں کو جانتا اور انہیں معاف کرنے میں سچا اور قادر ہے۔ خدا عظیم ہم پر رحم کر اور ہماری تمام تر خطاؤں کو ڈھانپ دے اور پھر کبھی انہیں یاد نہ کر، اور خداوند تیرا جلیل و قدوس نام ہماری زندگی میں مبارک ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ، اور بالخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے افراد کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو اب مجھے اجازت دیجئے، کل پھر سے آپ کی خدمت میں الصبح حاضر ہوں گا، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، خداوند میں محفوظ رہیے اور آباد رہیے، خوش رہیے، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیجئے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔